ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ سال 2024 کا سفر مکمل ہو رہا تھا، سال 2025 کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے، پوری دنیا سال نو کا جشن منا رہی تھی، ہیپی نیو ایئر کا نعرہ لگایا جا رہا تھا۔ اسی ٹائم اسرائیل نے غزہ پٹی کے جبالیہ کیمپ پر بمباری کر دیا، ایئر اسٹرائک شروع کر دیا، اور اسرائیل کے اس حملہ میں بیک وقت 15 سے زیادہ عام فلسطینیوں کی شہادت ہو جاتی ہے۔ لیکن فلسطین کی تنظیموں نے، حماس نے، القسام بریگیڈ نے اور القدس بریگیڈ نے اسرائیل کو بھی نیو ایئر کا جشن نہیں منانے دیا، اور جیسے ہی اسرائیل نے جبالیہ کیمپ پر سال نو کے آغاز میں ہی حملہ کر دیا، فلسطین کی جہادی تنظیموں نے بھی اسرائیل پر پلٹوار کیا، میزائل سے حملہ کیا، راکٹ سے حملہ کیا، بمباری کی، اور اسرائیل میں بھی ہر طرف سائرن کی آوازیں بجنے لگی۔ اسرائیل میں کچھ لوگ نیو ایئر کا جشن منا رہے تھے، سال نو کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، کچھ لوگ غزہ پٹی کے خلاف فتح کا جشن منا رہے تھے، لیکن حماس نے، القدس بریگیڈ نے اسرائیل میں منائے جا رہے سال نو کے جشن کو ماتم میں تبدیل کر دیا اور لگاتار حملہ کیا۔ خود غزہ پٹی میں جو اسرائیلی آرمی موجود ہے، اس پر بھی حماس کے لڑاکوں نے جگہ جگہ حملہ کیا، اور اسرائیل کو یہ صاف میسج دیا کہ حماس کے حوصلے میں، حماس کی ہمت میں ابھی بھی کوئی کمی سامنے نہیں آئی ہے۔ اسی کے ساتھ 1 جنوری سال 2025 کو القسام بریگیڈ نے اپنا ایک پوسٹر جاری کیا۔ اس پوسٹر کو آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ 60 سال تک ہم جنگ کی تیاری رکھتے ہیں، یعنی اگلے 60 سال بھی اگر جنگ جاری رہی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ اسرائیلی سینا پر، اسرائیل پر ہمارا حملہ جاری رہے گا، ہمارے حوصلوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب دیکھ لیجئے کہ اس لڑائی کو 452 دن پورے ہو چکے ہیں۔ سال 2025 کی شروعات کے ساتھ ہی یہ لڑائی تیسرے سال میں داخل ہو گئی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو طوفان الاقصی آپریشن کا آغاز ہوا تھا۔ اگلے دن اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ شروع کر دیا تھا، اور سال 2023 مکمل ہو گیا، جنگ بندی نہیں ہو سکی۔ سال 2024 پورا سال گزر چکا، اور ایک دن بھی، ایک لمحے کے لیے بھی جنگ بندی نہیں ہو سکی، اور اب سال 2025 کا آغاز ہو چکا ہے، اور اسرائیل نے لگاتار یہی دعویٰ کیا، ہمیشہ یہی کہا کہ وہ حماس کی طاقت کو ختم کر دے گا، حماس کے اندر لڑنے کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی۔ حماس کے فوجی انفراسٹرکچر کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے غزہ پٹی کی پوری آبادی کو در بدر کر دیا۔ غزہ پٹی کے تمام مکانوں، گھروں، ہسپتالوں، اسکولوں، کالجز، ہر طرح کی عمارت کو ملبہ میں تبدیل کر دیا۔ اسپتالوں میں بھی اسرائیل نے آگ لگا دیا، اور اتنا بڑا جنگی جرم دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جنگ میں پیش نہیں آ سکا۔ غزہ پٹی کے حوالے سے رپورٹ ہے کہ وہاں کی جو کل 24 لاکھ آبادی ہے، تو ٹوٹل آبادی ایک نہ ایک مرتبہ بے گھر ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 20 مرتبہ بے گھر ہو چکے ہیں، کچھ لوگ 30 مرتبہ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو یہاں سے دوسری جگہ رہنے کے لیے کہا جاتا ہے، پھر اس جگہ کو اسرائیل کی طرف سے خالی کرنے کا آرڈر جاری کیا جاتا ہے، وہ لوگ دوسری جگہ جا کر رہتے ہیں۔ پوری غزہ پٹی کی جو آبادی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کر رہی ہے، ہجرت کر رہی ہے، اور ان سب کے پیچھے اسرائیل کی یہ پالیسی ہے، یہ اسٹریٹجی ہے کہ لوگ حماس کے لڑاکے ہو سکتے ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہو سکتے ہیں، یا یہ کسی سرنگوں کو اپنے پاس چھپا کر رکھ سکتے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہوسٹیج کو اپنے پاس رکھا ہو، اور اس طرح جب لگاتار ہم ان سے پورا علاقہ خالی کرائیں گے، بار بار ان کو در بدر کریں گے، نقل مکانی کرنے پر مجبور کریں گے، تو ہم ہوسٹیج کو ریلیز کرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یا ہم حماس کے فوجی انفراسٹرکچر کو ختم کر سکتے ہیں، لڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اسرائیل نے سب کچھ کر دیا، لگاتار ایئر اسٹرائک کیا، سمندر سے حملہ کیا، غزہ پٹی کے چپے چپے پر اسرائیل نے اپنا آرمی کیمپ بنا رکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی حماس کی جو فوجی انفراسٹرکچر ہے، حماس کی جو طاقت ہے، اس کو ختم کرنے میں اسرائیل ناکام ہے، اور اب القسام بریگیڈ نے پوسٹر جاری کر دیا کہ اگلے 60 سالوں تک وہ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ القسام بریگیڈ نے ایک اور ویڈیو جاری کیا، جس ویڈیو میں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے القسام بریگیڈ نے کہ کس طرح وہ اپنے ہتھیار کو تیار کر رہے ہیں، کس طرح وہ پلاننگ کرتے ہیں، کس طرح حملہ کرتے ہیں، اور کس طرح اسرائیل کی تمام تر سازشوں کے باوجود بھی وہ آپس میں یونائٹ ہیں، اور پورا متحدہ طور پر وہ ہر طرح کی ایکٹیویٹی اور آپریشن کو انجام دیتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے کمانڈر سے احکامات نہیں لے پاتے ہیں، یا وہ اپنے طور پر حملہ کر رہے ہیں۔ ادھر عالمی دباؤ اسرائیل پر بڑھتا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے جو ایکسپرٹ ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کا ایک اور تازہ بیان سامنے آیا ہے، اور اس بیان کو جرمنی کے اخبار DW نے شائع کیا، جس میں
यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट और माहिरीन का कहना है कि इसराइल ने जराइम और क्राइम की तमाम हदों को पार कर दिया है। गज़ा पट्टी में इसराइल जो कुछ कर रहा है वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, वो आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और इत्तेहादी ममालिक के सपोर्ट से, यानी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और इस तरह के जो बड़े बड़े ममालिक हैं, उनके सपोर्ट की वजह से, उनके ताउन की वजह से इसराइल खुलेआम धांधली कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तमाम आलमी क़वानीन की वो धज्जियाँ उड़ा रहा है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और हर हाल में गज़ा पट्टी से इसराइली आर्मी को निकल जाना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट का, माहिरीन का बयान सामने आया है। इसके अलावा एक और बयान सामने आया है और वो अहम है, और इस बयान को इजराइल की मीडिया ने ही शाया किया है। इजराइल के साबिक जनरल हैं इसहाक बरीक, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि गज़ा पट्टी में इजरायली आर्मी जीत हासिल नहीं कर रही है बल्कि हार रही है। इसराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से जो जीत का दावा किया जा रहा है वो दावा सरासर झूठ पर मबनी है, हकीकत के खिलाफ है, क्योंकि 15 महीने हो चुके हैं और 15 महीनों में इजरायली आर्मी अपने होस्टेज को आज़ाद कराने में कामयाब नहीं हो सकी है। इसके अलावा इजराइल ने, बिन्यामिन नेतन्याहू ने यह दावा किया कि उसने हमास की फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके अंदर जो लड़ने की सलाहियत है उसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी तक हमास की तरफ से हम पर हमला हो रहा है, हमारे शहरियों पर हमला हो रहा है, हमारे गाँव और इलाके महफूज नहीं हैं। यमन के हौसी बैलिस्टिक मिज़ाइल से तिल अबीब पर हमला तो कर ही रहे हैं, लेकिन गज़ा की सरजमीन से भी अस्कलान पर, अशकलोन पर, तिल अबीब पर और इजराइल के दूसरे शहरों और विलेजेस पर हमला हो रहा है। रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है, मिसाइल से हमला किया जा रहा है, बमबारी की जा रही है। खुद जो इजराइल की आर्मी गज़ा पट्टी में मौजूद है उन पर हमला हो रहा है। रोज़ाना 4-5 इजरायली सेना की हलाकत हो रही है। मरकावा टैंक को तबाह किया जा रहा है, इजराइल के बुलडोज़र D9 को तबाह किया जा रहा है, इजराइल का जो इंटेलिजेंस का महकमा है उसके जो हेलीकॉप्टर है उसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। तो इजराइल के साबिक जनरल इसहाक बरेक ने कहा कि बिन्यामिन नेतन्याहू और हुकूमत की तरफ से जो ये दावा किया जा रहा है कि हमारी कामयाबी हो रही है और हमें जीत मिल रही है गज़ा पट्टी में और हमने हमास के फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया है, ये जो दावा है सरासर झूठ है, हकीकत के ख़िलाफ़ है। और सच्चाई यह है कि इजराइल को हमास के हाथों अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। और जब हमास का ये पोस्टर आ गया है तो उसने इजरायली मीडिया में और हंगामा बर्पा कर दिया है और कोई भी बिन्यामिन नेतन्याहू के इस दावा को तस्लीम करने को तैयार नहीं। इधर नए साल का जश्न मना रहे इजराइल पर यमन के हौसियों ने भी हमला किया और यमन के हौसियों ने 1 जनवरी को 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागा। एक मिसाइल से उन्होंने तिल अबीब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया और दूसरे मिसाइल से उन्होंने इजराइल के एक और इलाका को निशाना बनाया। और यमन के हौसियों का जो दोनों हमला है वो टारगेट पर जाकर लगा, निशाने पर लगा। इजराइल में 20 से 25 लोगों के जख्मी होने की खबरें सामने आई है। रद्द अमल में इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक किया यमन के हौसियों पर, लेकिन इजराइल के हमला के बावजूद यमन के हौसी पीछे नहीं हट रहे हैं बल्कि वो लगातार इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। और जो अपडेट सामने आई है अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से कि नए साल पर किस तरह इन लोगों ने अपनी कार्रवाई की है, किस तरह हमला किया है, तो उसकी जो तफसीलात सामने आई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि गज़ा पट्टी में जो इजराइली मौजूद हैं, जो इजराइल के फ़ौजी कैंप मौजूद है उस पर कई तरफ से इन लोगों ने हमला किया, हर तरफ से नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आ रही है कि 1 जनवरी को ही इजरायली आर्मी एक जगह जा रहे थे, यानी इजरायली आर्मी की बटालियन एक जगह जा रही थी, उस पर अल-कुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों ने अटैक किया और उनका यह अटैक कामयाब रहा और जो पूरी बटालियन है वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है और उसमें कई एक की हलाकत भी सामने आती है। इसके अलावा एक और बात ये जान लीजिए कि अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक और पोस्टर जारी किया और पोस्टर में अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा कि हमारा जो ये नया साल आएगा वो साल भी हमारा जिद्दोजहद का रहेगा, जंग का रहेगा, जिहाद का साल रहेगा। तो अल-क़स्साम ब्रिगेड और हमास को अंदाज़ा है कि जंगबंदी इतनी जल्दी नहीं हो सकती है और अगले कई सालों तक ये लोग लड़ने के लिए अभी तक तैयार हैं। इनके हौसलों में कमी नहीं आई है, इनकी हिम्मत में कमी नहीं आई है और ये इस जंग को जारी रखने के लिए अभी तक तैयार हैं क्योंकि जंगबंदी की भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक और पोस्टर जारी किया जिसमें लोगों ने लिखा कि
452 दिन पूरे हो गए हैं और हमने अशदूद के इलाकों में, अस्कलून में और ज़कीम में जो इजराइली इलाके हैं वहाँ पर हमने बमबारी की है, वहाँ हमने रॉकेट से हमला किया है और इजराइल की दहशतगर्दी और जारहियत का मुकाबला हमारी तरफ से लगातार जारी है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक और अपडेट जारी किया जिसमें कहा कि इजराइली कत्ले आम के जवाब में इजराइल के नेट्यूट इलाके की तरफ हम लोगों ने मिसाइल से हमला किया है। और दरअसल जैसे नए साल की शुरुआत होती है, इजराइल ने जबालिया कैंप पर हमला किया तो अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भी इजराइल पर रॉकेट से और मिसाइल से हमला किया और इस हमले का जवाब दिया। और तकरीबन ये जो मिसाइल और रॉकेट हमला है अल-क़स्साम ब्रिगेड का इजराइल पर कई महीना के बाद सामने आया है। तो अभी तक हर तरह के दिफा की सलाहियत मौजूद है, रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत भी अल-क़स्साम ब्रिगेड के पास मौजूद है। इसके अलावा एक और अपडेट सामने है जिसमें कहा जा रहा है कि अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक मरकाबा टैंक को और एक इजराइल के D9 बुलडोज़र को मुश्तरका तौर पर निशाना बनाया और RBG और अल यासीन बमबार 105 से जबालिया कैंप के मरकज़ में लोगों ने इजरायली आर्मी पर हमला किया। एक और अपडेट सामने आई जिसमें कहा गया कि अल-कुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली आर्मी की जो गाड़ी थी उसके काफिले को निशाना बनाया और शहीद अनवर अजीज़ मस्जिद के आसपास बहुत ज़्यादा धमाका खेज़ मवाद था, उन सब को इन लोगों ने उड़ा दिया और ये भी जबालिया कैंप के वस्त में हुआ। एक और अपडेट सामने जिसमें कहा गया कि अल-कुद्स और तिल अबीब के मकबूजा शहरों में रॉकेट फोर्स की बमबारी के मनाजिर, यानी इन लोगों ने एक वीडियो जारी किया जिसमें देखा गया कि इजराइल के जो शहर हैं जिसको मकबूजा फ़लस्तीन का शहर कहा जाता है, वहाँ इन लोगों ने रॉकेट से हमला किया है, बमबारी की है और उसकी वीडियो भी जारी की गई है। इसी तरह एक और अपडेट सामने जिसमें कहा गया कि अल-कुद्स ब्रिगेड ने नटज़रीम के सेंटर में इजरायली फ़ौज के ठिकानों पर माटर गोलों से बमबारी की है। इसके अलावा अशदूद, अस्कलून और ज़कीम पर इन लोगों ने मिसाइल से बमबारी की और दुश्मन की कई गाड़ियों को इन लोगों ने नॉर्थ गज़ा में निशाना बनाया, उसको टारगेट किया। एक और अपडेट इन लोगों ने दी है कि अल-अक़सा शहीद ब्रिगेड ने नासिर सलाहुद्दीन ब्रिगेड के साथ मिलकर इजरायली आर्मी पर हमला किया और उसकी वीडियो इन लोगों ने शेयर की कि किस तरह ये तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा यमन के हौसियों की तरफ से अपडेट है कि यमन के हौसी के जो तर्जमान हैं, अंसारुल्लाह के तर्जमान, उन्होंने कहा कि हमने बिन गोरीन हवाई अड्डे और एक पावर स्टेशन को इजराइल में निशाना बनाया और दोनों फौजी ऑपरेशन हमारा कामयाब रहा। हमने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से मकबूजा जाफा के बिन गोरीन हवाई अड्डे को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल के साथ मकबूजा यरूशलेम के जुनूब को भी हमने टारगेट किया। और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि इजराइल का जो सिक्योरिटी हल्का है उसमें जंगबंदी की जो मांग है बढ़ती जा रही है। इजराइल का अखबार है यदीओत अहरोनोत, उसने कहा कि जो सिक्योरिटी हल्के हैं वहाँ तमाम फरीक ट्रंप के वाइट हाउस में दाखिल होने से कबल ही जंगबंदी के लिए उम्मीद जता रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि उससे पहले ही जंगबंदी हो जानी चाहिए, लेकिन बिन्यामिन नेतन्याहू की ज़िद पर जंगबंदी नहीं हो रही है और हमास ने भी इस जंग को जारी रखने का ऐलान कर दिया है अगर इजराइल की तरफ से इसमें नरमी नहीं बरती जाती है। तो ये गज़ा पट्टी की ताज़ा तरीन अपडेट है इस पूरे मामले पर कि पूरा साल 2024 कैसा रहा फ़लस्तीन के लिए, हमास के लिए। हमने अमरीश मिश्रा का इंटरव्यू भी किया है जिस पूरे मामले पर गहरी नज़र रखते हैं, मशहूर हिस्टोरियन है, तो उस इंटरव्यू को भी आप ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़िए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।